Hello students, welcome to Simply Biology. Today we'll study about tobacco mosaic virus, which is shortly known as TMV. So the tobacco mosaic virus, which highly infects tobacco plant, was first discovered by Ivan Boesky in 1892, but its isolation from the infected plants and crystallization was done by Stanley in 1935. Now this tobacco mosaic virus, it appears as a bundle of rods or small needles. As you can see in the picture here, these are the particles of TMV virus which appear as bundle of rods. Now these particles have two constituents. One is its protein coat and other is the nucleic acid, that is RNA. The protein coat is made up of approximately 2000 protein subunits which are known as capsomeres. Now, this capsomeres, they consist of long chain of 158 amino acids. These capsomeres, they are helically arranged around the single-stranded RNA. The RNA, which is the genomic nature of tobacco mosaic virus, is a single-stranded RNA, and the capsomeres, which are the protein subunit, are helically arranged around the RNA. The genetic information is contained in the RNA of the tobacco mosaic virus, and it determines the replication of DNA as well as the sequence of amino acids in the protein subunits. This protein coat can be removed from the RNA, and the naked RNA, it is capable to infect the tobacco plant. So we can say that mainly RNA has two functions. One is self-replication and another is the synthesis of virus specific proteins. एक तो जो RNA होता है वो सेल्फ रेप्लिकेशन का काम करता है, यानी कि अपनी कॉपी बनाता है, और सेकेंडली यही जो सिंगल RNA है या जो नेकेड RNA है वो वायरस के स्पेसिफिक प्रोटीन्स को भी सिंथेसाइज करता है, और जो इसकी प्रोटीन सब यूनिट्स हैं वो होती हैं कैप्सोमियर्स. Now, different sources of TMV infection are, first of all, TMV जो tobacco mosaic virus का infection है वो कहाँ से आता है? By the infected leaves which are present in the soil. तो जो भी डेब्रिस होगा, जो भी लीव्स होंगी जो कि इन्फेक्टेड होंगी टोबैको मोज़ाइक वायरस से, वो सबसे चीफ सोर्स है फॉर द इन्फेक्शन ऑफ टोबैको मोज़ाइक वायरस. And this infection, it may pass from one host to another through mechanical means. मैकेनिकल मीन से ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में पास हो सकते हैं, लाइक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, जो भी एग्रीकल्चर के टूल्स यूज़ होते हैं तो उनके थ्रू टोबैको मोज़ाइक वायरस का इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है. एंड सेकेंडली बाय द रबिंग ऑफ इन्फेक्टेड लीव्स ओवर द सरफेस ऑफ हेल्दी लीव्स, या फिर जो इन्फेक्टेड लीव्स हैं अगर वो किसी तरह कांटेक्ट में आ गई हेल्दी लीव्स के, तो उनके रबिंग की वजह से, उनके कांटेक्ट में आने की वजह से टोबैको मोज़ाइक वायरस का इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होगा एक प्लांट से दूसरे प्लांट में. नाउ दिस वायरस, it is highly contagious and it can retain its infectivity even after the leaves have been processed into smoking tobacco. जब स्मोक जो टोबैको है वो प्रोसेस्ड हो चुका है तो उसके बाद भी लीव्स में वायरस रिटेन रह सकता है या वायरस इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. And the another point which can act as a source of TMV infection is a person who has handled a cigarette containing infected टोबैको. तो अगर किसी व्यक्ति ने इन्फेक्टेड टोबैको लीव्स से इन्फेक्टेड जो सिगरेट है उसको हैंडल किया, उसको यूज़ किया या स्मोक किया है, और उसके बाद वो टोबैको के फील्ड में जाके अगर हेल्दी प्लांट्स के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ से भी ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकता है. अब जो इसमें मेन जो वेक्टर्स रोल प्ले करते हैं वो है इंसेक्ट्स, माइजस पर्सिकी
और Myzus pseudosolani एंड Myzus solani. तो ये जो तीन वायरस जो तीन इंसेक्ट्स हैं, दीज आर द मेन वेक्टर्स ऑफ टोबैको मोज़ैक वायरस. Now, the first visible symptom of tobacco mosaic virus is in the form of downward curling and distortion of young apical leaves. अब यहाँ पे जो सबसे पहले हमको सिम्टम देखने को मिलता है टोबैको मोज़ैक वायरस का, वो होता है डाउनवर्ड कर्लिंग, यानी कि जो लीव्स हैं वो कर्ल होने लगती हैं नीचे की तरफ को, और जो यंग लीव्स हैं, जो एपेक्स में जो यंग एपिकल लीव्स हैं, उनका डिस्टॉर्शन होने लगता है, यानी कि उनका शेप चेंज होने लगता है ड्यू टू द कर्लिंग. उसके अलावा लार्ज स्पॉट्स ऑफ डार्क ग्रीन कलर अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ विच डेवलप इनटू इरेगुलर ब्लिस्टर्ड एरियाज. तो कुछ लार्ज स्पॉट्स हमें देखने को मिल सकते हैं लीव्स के अपर सरफेस पे. अदर देन दैट सम एरियाज ऑल्सो शो येलो एंड ग्रीन मॉटलिंग या मोज़ैक सिम्टम्स. कुछ जो एरियाज हैं लीव्स के वो येलो या ग्रीन मॉटलिंग सिम्टम्स भी शो कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज कि जो प्लांट होता है वो स्टंटेड ग्रोथ शो करता है, लेकिन उसकी हाइट छोटी रहती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.